Now we will discuss the solids classified into two types, crystalline and amorphous. Now we shall see them in detail. What do we mean by crystalline solid and amorphous solid? So crystalline solids, when the constituent particles, that is जिससे भी ये solid बना है उस particle को हम कहते हैं as constituent particle. ये particle atom, ion, molecule कुछ भी हो सकता है. So whatever is your constituent particles, the constituent particles are orderly arranged. That is, they are properly arranged. They have an ordered arrangement or they are properly arranged. That is, they have long range order. यानी कि ordered arrangement काफी time तक है. If the particle have a arrangement like this and they are having this particular arrangement in a regular manner, अगर यही arrangement बार बार repeat होता है, dimensions वही रहते हैं, तो the particles are having the same kind of arrangement throughout, no change anywhere, then they are called long range order. So such solids are called crystalline solid. Crystalline solid have perfect arrangement. Perfect arrangement होता है crystalline solid में. एक छोटा सा portion बार बार repeat हो रहा है, that is they have long range order. Whereas here the constant particles are randomly arranged. Random arrangement है particles का, कैसे भी है. Or you can tell they have improper arrangement. कुछ देर तक तो regular arrangement दिखा, ठीक है. Now what happens is so they have irregularities now. So they are not orderly arranged. They are called short range order. The order is only for a short range, and in amorphous solid and in crystalline solid the particles are properly arranged and they are long range order. For example, generally ionic compounds, salts like NaCl, KCl, NaNO3, metals, etc. are crystalline solid. And amorphous solid examples are basically plastics, glass, rubber. So the polymers that we have, they have irregular arrangement or short range order. And here you have metals, alloys, they have proper arrangement, ionic solid, and these are crystalline solid. Silica, you can write quartz. So these are crystalline solid and amorphous solid. This is the definition which act as a difference. If the constant particles are properly arranged, here they are randomly arranged. Okay? Furthermore, we shall see what are the further properties of crystalline and amorphous solid. Now we have already said that they have proper arrangement. ठीक है, crystalline solid में proper arrangement होता है, amorphous में irregular है. So due to the proper arrangement, they have sharp melting point. For example, you have a solid A. It will melt at 30 degree. Exactly at 30 degree, it will start to turn from solid to liquid. ठीक है, 30 पे सारा solid liquid में convert हो जाएगा. That's its melting point, sharp melting point. On the contrary, they have a range of temperature for melting. यानी कि इन solids के लिए अगर यहाँ पे एक solid लेते B solid लिया है, तो वो suppose करो 30 डिग्री पे melt होना शुरू हुआ और 50 डिग्री तक वो मेल्ट हो रहा है. सो यू डोंट हैव अ एग्जैक्ट टेम्परेचर बट यू हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. और वो रेंज इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है. कहीं पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है पार्टिकल के बीच, कहीं पर वीक फोर्स लग रहा है. तो इम्प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. And in crystalline solid, they have proper arrangement
हर जगह एक जैसे फोर्स है, इसलिए ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो जब मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है तो दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब एक सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो कुछ एनर्जी चेंजेस होते हैं, दैट इज फिक्स्ड बिकॉज दे आर मेल्टिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, so they have definite heat of fusion. The process is taking place at a single temperature, but here it is melting for a range, so they have indefinite heat of fusion. यहाँ पे indefinite heat है, पता नहीं है exactly enthalpy change क्या हो रही है। The next property is when you cut amorphous crystalline substance with a sharp tool, ठीक है, शार्प टूल से अगर आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को कट करते हो, इट विल गिव यू स्मूथ सरफेस, टूट जाएगा और स्मूथ सरफेस बनेंगे, ठीक है, एक जैसे बॉन्ड हर जगह से टूट रहे हैं। Whereas if you cut this with a sharp tool, you will get rough surface, और वो इरेगुलर होते हैं क्योंकि अलग अलग बॉन्ड टूट रहे हैं, क्योंकि एटम का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। तो अमॉर्फस सॉलिड में जब आप कट करते हो तो इरेगुलर सरफेसेस या स्मूथ सरफेस नहीं होती, रफ सरफेस होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू कट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विद अ शार्प टूल, यू गेट स्मूथ सरफेसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज these crystalline solids are actually true solids, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, सबके बीच का फोर्स एक जैसा है, so these are true solid. But an amorphous solid, these are pseudo solids, यानी कि सारे सॉलिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। सूडो का मतलब होता है फॉल्स या फेक, तो ये सूडो सॉलिड्स होते हैं। और these are also called as super cooled liquid, यानी कि ये सब्सटेंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं, दैट इज व्हाई दे एक्ट एज सुपर कूल्ड लिक्विड। फॉर एग्जांपल अमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लास, जो बहुत सालों तक टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से, अगर आप मॉन्यूमेंट्स या पुराने एंशिएंट बिल्डिंग्स में जाके तो ऊपर का पार्ट पतला होता है ग्लास, विंडो पेन्स का, ग्लास का अगर वो है, और नीचे का थिक हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे कर वो ग्लास फ्लो कर रहा है। द फ्लोइंग प्रोसेस इज वेरी 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 स्लो, द रेट ऑफ दैट प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो आप ये नहीं कहोगे आज देखा तो थिन हुआ है और रात को देखोगे तो थिक हो जाएगा, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट विल टेक मेनी ईयर्स। सो such solids are amorphous solid and they are super cooled liquid because they have flowing ability, but flowing ability हमें नेक डाई से एकदम से पता नहीं चलते, वो बहुत स्लो हो रहा है कि उसके चेंजेस बहुत सालों बाद पता चलते हैं। So these are pseudo solid or super cooled liquid, amorphous solid. On the contrary, crystalline solids are true solids. And the last and the important property of crystalline and amorphous solid that we are going to discuss is a very important property. And crystalline solids are considered to be anisotropic in nature. We will see what do we mean by anisotropic. And amorphous solids are isotropic in nature. अभी है क्या वर्ड, इसका मतलब देखते हैं, एनाइसोमेट्रिक और आइसोट्रोपिक। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब है, पहले तो हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट है। सो यू हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, तो आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ पे पार्टिकल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट है। नाउ आई एम मार्किंग दिस लाइन एज AB, fine, and this as CD. Anisotropic means if you find a physical property, अगर आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हो अलग अलग डायरेक्शन से, और उसकी वैल्यू अगर अलग अलग डायरेक्शन से एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू एक ही सॉलिड के अंदर से जो आप मेजर करते हो और वो अलग आ रही है अलग अलग डायरेक्शन पे, then that is called anisotropic. Aniso means it's not same. The physical property measurement is different through different direction for a crystalline solid. On the contrary, for amorphous solid, जहाँ पे particles का
इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का. सो इफ यू व्यू अलोंग दिस डायरेक्शन और अलोंग दिस डायरेक्शन, सो व्हाट आर यू फाइंडिंग? यू फाइंड द सेम एटमॉस्फेयर. सो कहीं से भी ले लो, रैंडम अरेंजमेंट है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम रहती है, एंड दैट्स कॉल्ड आइसोट्रोपिक. इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी value remains same in different direction, then it's called isotropic. So amorphous solids are isotropic but crystalline are anisotropic. Now why? आप एक ये crystalline solid है, आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करो जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हम सबको पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, राइट? इट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होता. बट ग्लास अमॉर्फस है. ऑन द कॉन्ट्ररी हम एक आयनिक सॉलिड लेते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होता, वो चेंज होता है अलग अलग डायरेक्शन से. नाउ इफ आई पास द लाइट फ्रॉम ए टू बी, ए बी से लाइट हम पास कर रहे हैं तो मेरे से बड़े बड़े एटम्स आ रहे हैं, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. और सेम लाइट को अगर मैं सी डी की डायरेक्शन से पास करूँ, आई हैव अ बिग एटम देन अ स्मॉल एटम, अ बिग एटम एंड अ स्मॉल एटम. तो सी डी से जब हम मेजरमेंट लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और ए बी से जो हमने फाइंड आउट किया वो डिफरेंट है, क्योंकि वो दोनों जगह दोनों डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल्स को एनकाउंटर कर रहा है. दैट इज व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू विल बी डिफरेंट. दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एनाइसोट्रोपिक. बट आइसोट्रोपिक में क्या है, कहीं से भी ले लो, रैंडम अरेंजमेंट है, पार्टिकल का एक जैसा अरेंजमेंट आने वाला है, तो आप कैसे भी व्यू कर लो, यू विल हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि पार्टिकल का कोई अरेंजमेंट नहीं है. सो दिस इज आइसोट्रोपिक. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक बट अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक. इवन दो प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट से क्या हुआ, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग पार्टिकल्स एनकाउंटर होते हैं, एज अ रिजल्ट अलग अलग बॉन्ड आ रहे हैं वहाँ पे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी. So this is the classification of solid on the basis of the arrangement of constituent particle. Constituent particle कैसे arranged है, उसके अकॉर्डिंग solids क्लासिफाई किए गए हैं crystalline and amorphous.